Hello students. In this part I will discuss about pleiotropy. So what is pleiotropy? अभी डिस्कस करते हैं. इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जहाँ पर हम लोगों ने सुना कि वन कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय पेयर्ड फैक्टर दैट इज एलील्स एंड these are genes. One gene regulates one character in organism. Previously I have also discussed about some features are regulated by more than one genes. But in this condition, pleiotropy, it was observed that one gene regulates more than one characters. So this effect is called pleiotropy. What is pleiotropy? If one gene regulates more than one characters, then it is called pleiotropy. तो एक जीन वन फीचर, कई जीन एक फीचर जीन इंट्रैक्शन में भी डिस्कस किया था. एंड इन प्लियोट्रॉपी क्या होगा? तो एक जीन एक से ज़्यादा फीचर्स का रेगुलेशन करेंगे, देन इट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपी. प्लियोट्रॉपी कोई नई या जेनेटिक्स में बात नहीं थी. दिस प्रोसेस वाज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय ग्रेगर जॉन मेंडल. और मेंडल ने इसको ऑब्जर्व तो किया था, लेकिन इसको बहुत एलाबोरेट नहीं किया. उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जो प्लांट में सीड शेप के लिए जीन प्रेजेंट है, द सेम जीन रेगुलेट्स स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट. So this event was observed by Mendel during his experiment that the gene which regulates seed shape also regulates starch synthesis in the pea seed. So यहाँ पर हम लोग प्लियोट्रॉपी को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? one gene regulates, if one gene regulates more than one feature, then this effect is called feature, then this effect is called pleiotropy. Then this effect is called pleiotropy. Then this effect is called pleiotropy. This phenomenon was observed by Gregor John Mendel. This phenomenon was discovered by Mendel. He observed that in pea plant, the gene which regulates seed shape also regulates starch synthesis. So this effect is actually pleiotropy. Later this process was elaborated, and it was found that several disorders also occurs in human being due to pleiotropic effect. For example, the most common is phenylketonuria. It is a chromosomal defect which occurs due to defective chromosome number 12. If chromosome number 12 is defective, it is when it is in homozygous recessive condition. डिफेक्ट कब हो? तो जब ये जीन हमारे पास डिफेक्टिव जीन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा, तो एक डिजीज होगी. दैट डिजीज इज कॉल्ड phenylketonuria. In this disease,
इस केसेस में क्या होना है, तो फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड्स है और ये अमाइनो एसिड हम डाइट के थ्रू लेते हैं. दिस फिनाइल एलेनिन इज लेटर मेटाबोलाइजेस in the form of tyrosine in the presence of an enzyme. और जो एंजाइम हमारा बनेगा इस फिनाइल एलेनिन को मेटाबोलाइज करने के लिए, दिस एंजाइम सिंथेसिस इज रेगुलेटेड बाय क्रोमोसोम नंबर 12. तो क्रोमोसोम नंबर 12 पर हमारे पास जीन प्रेजेंट है और ये जीन हमारे पास क्या करेंगे, ये जीन हमारे पास उस एंजाइम की सिंथेसिस करेगा जिससे फिनाइल एलेनिन अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होगा. इफ द chromosome is defective and the gene is in homozygous recessive condition, then the enzyme is not synthesizes. What is the enzyme? The name of enzyme? The enzyme is phenylalanine hydroxylase. So chromosome number 12 रेगुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ फिनाइल एलेनिन. है क्या, व्हाट इज फिनाइल एलेनिन? फिनाइल एलेनिन एक अमाइनो एसिड है, इज एन अमाइनो एसिड विच इज टेकन इन आवर डाइट. This phenylalanine is metabolizes in the presence of phenylalanine hydroxylase enzyme. एंजाइम का नाम क्या है? phenylalanine hydroxylase. और ये एंजाइम इस phenylalanine को कन्वर्ट करता है टायरोसाइन, another amino acid tyrosine. And this tyrosine plays very important role in our body as this is used in the synthesis of melanin pigment of our skin. This tyrosine is required for synthesis of myelin sheath. नर्व्स में हम लोगों ने माइलिनेटेड नर्व्स पढ़े थे, myelin sheath की synthesis में, and this is used in normal kidney functioning. बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं, ब्रीफ में ये फंक्शंस हो गए जो एक क्रोमोसोम में डिफेक्ट के कारण हमें हो रहा है, क्योंकि एक क्रोमोसोम से जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज यूज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस. And if the chromosome is defective, then phenylalanine is not metabolized as tyrosine. Hence, melanin pigment is not synthesized, myelin sheath is not synthesized, normal kidney functioning is affected. इतने सारे disorders हो जाएंगे. Phenylalanine will accumulate in our body. ब्लड में ये accumulate करेगा क्योंकि इसको हम मेटाबोलाइज नहीं कर पाएंगे. So phenylalanine accumulates in blood. So disease is phenylketonuria. Phenylalanine accumulates in our blood. This phenylalanine comes out through our urine. इसके फिनाइलएलेनिन जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये टर्न्स ब्लैक, इसका यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक यूरिन डिसीज. यूरिन में फिनाइलएलेनिन के रहने के कारण, कंसंट्रेशन इंक्रीज होने के कारण यूरिन में एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, माउसी स्मेल, चूहे के जैसी माउसी स्मेल इन यूरिन. तो ये एक फिनाइलएलेनिन के मेटाबॉलिज्म सही से ना होने के कारण कई सारे डिसीज हो गए. मेलानिन एल्बिनिज्म हो जाएगा, स्किन में कलर नहीं बनेगा, पिगमेंट सिंथेसिस नहीं होगी, माइलिन शीथ नहीं बनने के कारण न्यूरल डिसऑर्डर हो जाएंगे.
नॉर्मल किडनी फंक्शनिंग हमारा इफेक्टेड होगा, और जो डिजीज होगी दिस डिजीज इज फिनाइलकीटोन्यूरिया। ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहते हैं क्योंकि यूरिन टर्न्स ब्लैक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनाइलएलेनिन, और इस यूरिन में माउसी स्मेल होता है। तो दिस इज ऑल ड्यू टू डिफेक्टिव इन क्रोमोसोम नंबर 12 विच कॉजेज फिनाइलकीटोन्यूरिया डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया? तो एक जीन ने कई सारे फंक्शंस का रेगुलेशन कर दिया। सो दिस इज प्लियोट्रॉपी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी इज सिस्टिक फाइब्रोसा। एक और भी हमारे पास प्लियोट्रॉपी की इफेक्ट को शो करने के लिए एक और भी डिसऑर्डर हमारे पास है, सिस्टिक फाइब्रोसा। सिस्टिक फाइब्रोसा ये भी प्लियोट्रॉपी की इफेक्ट को शो करता है। सिस्टिक फाइब्रोसा हमारे पास डिफेक्टिव क्रोमोसोम नंबर 7 के कारण होता है। दिस सिस्टिक फाइब्रोसा इज कॉज्ड ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 7। सो सिस्टिक फाइब्रोसा कैसे होगा? डिफेक्टिव क्रोमोसोम नंबर 7, डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 7। सिस्टिक फाइब्रोसा हमारे पास एक ग्लाइकोप्रोटीनस केमिकल के सेक्रेशन को रेगुलेट करता है। ये क्रोमोसोम नंबर 7 regulates synthesis of a glycoproteinous chemical in our body. Regulates glycoproteinous chemical in our body. In the form of mucus. ये ग्लाइकोप्रोटीनस केमिकल का जो सिक्रेशन करता है इससे ये रेगुलेट करता है म्यूकस के फॉर्म में। सो अगर ये डिफेक्टिव हो जाता है तो हमारे पास जो म्यूकस का सिक्रेशन है, ये म्यूकस का सिक्रेशन हमारा इंक्रीज कर जाता है। जैसे म्यूकस कहाँ से सिक्रीट होता है, पहले ये देखो हमारे पास म्यूकस का सिक्रेशन नेजल चैम्बर में आता है। हमारे लंग्स के पास म्यूकस होता है, जो कि लंग्स में म्यूकस का सेक्रेशन बढ़ जाने के कारण कभी कभी हमारे पास निमोनिया वाले सिम्टम्स भी आते हैं। तो म्यूकस आमतौर पर हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है। म्यूकस एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट है। जैसे कि जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं सबसे हमारा स्मॉल अमाउंट में म्यूकस का सेक्रेशन है। तो ये म्यूकस सेक्रेशन इंक्रीज कर जाने के कारण हमारे पास जितने भी डक्ट्स हैं, ऑल डक्ट्स गेट ब्लॉक्ड। सारे डक्ट्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक कर जाते हैं ड्यू टू एक्सेसिव म्यूकस। जैसे पेनक्रियाटिक डक्ट ये ब्लॉक कर जाएगा, बाइल डक्ट ब्लॉक कर जाएगा, एल्वियोलाई में म्यूकस एक्यूमुलेट करने लग जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे बॉडी में जिसके कारण ये ब्लॉकेज होने लग जाएगा। तो बाइल डक्ट अगर ब्लॉक कर जाए तो हमें लीवर सिरोसिस हो सकती है। लीवर सिरोसिस। पेनक्रियाटिक डक्ट से हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एल्वियोलाई में होने से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो रेस्पिरेशन में गैसियस एक्सचेंज हमारा इफेक्टेड हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर 7 अगर डिफेक्टिव है तो इस एक के डिफेक्टिव से हमारे पास कई डिजीज हो सकती हैं। इवन की जो यूरिन है उससे होकर फैट निकलने लगता है, बॉडी में फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, फैट एक्यूमुलेट करने लग जाता है, हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो एक डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसा डिफेक्टिव इन क्रोमोसोम नंबर 7, डिफेक्ट इन क्रोमोसोम नंबर 7 कॉजेज सिस्टिक फाइब्रोसा। लेकिन एक सिस्टिक फाइब्रोसा से हमारा कोई एक कैरेक्टर रेगुलेट नहीं हो रहा, बल्कि ये कई सारे कैरेक्टर्स, कई सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करने लग जाता है। सो इट इज प्लियोट्रॉपी। ये भी क्या है? ये भी प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट को शो करता है। म्यूकस सिक्रेशन इंक्रीज करने के कारण जितने भी ग्लैंड हैं हमारे एक्सोक्राइन, ऑलमोस्ट ऑल ग्लैंड गेट ब्लॉक्ड, और उसके ब्लॉकेज से वो जिस ग्लैंड का पार्ट है उसका जो मेन ऑर्गन है वो इफेक्टेड हो जाता है, और उसके कारण डिसऑर्डर यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इफेक्टेड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इफेक्टेड है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इफेक्टेड है। ऑल पार्ट गेट डिस्टॉर्टेड ड्यू टू वन डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसा। सो इट इज अ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट। क्लियर हो गया?